تو یہ کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جب بھی محفل میلاد یا نعت خوانی کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ یار یہ کون سا کام شروع کر دیا، پہلے تو نہیں تھا. شاید انہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی علماء نے کیٹیگریز بنائی ہیں. کئی صحابہ تھے جو کاتبین وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے. کئی صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ محافظین تھے، وہ حفاظت کا انتظام کرتے تھے. کئی صحابہ خدمتگار تھے. بہت سارے صحابہ کے بہت سارے کام تھے. تو اسی بزم صحابہ میں کچھ خوش نصیب صحابہ وہ تھے جو نبی پاک کے نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے، مداح رسول تھے. ان کی ڈیوٹی یہی تھی. ایکچولی ہوتا کیا تھا پہلے یہ سمجھیے گا، پہلے کے زمانے میں تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور اشعار اور الفاظ کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی تھی. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، انٹلیکچوئل لوگ تھے، وہ الفاظ کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے. تو معاذ اللہ کفار کیا کرتے تھے، بے ایمان لوگ جو تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خلاف اشعار لکھتے، ان کے خلاف باتیں لکھتے. تو ادھر سے صحابہ کرام میرے آقا کی نعتیں لکھ کر، اشعار لکھ کر ان کا جواب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. الحمدللہ اردن میں ان کا مزار ہے اور یہ غزوہ موطا میں جا کر شہید ہوئے تھے. وہاں مجھے حاضری کا شرف بھی ملا اور ہم نے مدری چینل پر ان کے مزار کی زیارت بھی کروائی تھی. اس وقت بھی ہم نے وہاں کچھ ان کی سیرت بیان کی تھی. جو مجھے یاد ہے کہ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تاریخی فرمان موجود ہے جس کا مضمون ہے کہ اے عبداللہ تمہارے اشعار ان کفار کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ نبی پاک کی نعت لکھتے، آقا کی شان بیان کرتے تو ان کے جا کے دلوں پہ لگا کرتی تھی. اچھا پھر ایک اور بڑے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں پہچانتا. آپ تو ایسے نعت خواں تھے، ایسے نعت گو صحابی تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر لگا کر ان کی نعتیں سنا کرتے تھے. اور آقا فرماتے اے اللہ روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. اچھا اب کیا پتا چلا کہ نعت پڑھنا یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے اور نعت سننا سبحان اللہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. نعت خوانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. مسجد نبوی میں صحابہ کی بھی محفل نعت سجا کرتی تھی. تو ذرا بھی کنفیوز نہ ہوا کریں. اور مجھے تو مزہ یہ آ رہا ہے کہ آج جس مسجد میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی دعوت اسلامی کے ایک عظیم و شان نعت خواں کی یاد دلاتی ہے. اللہ تربت حاجی مشتاق پر بھی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. کیا عظیم نعت خواں. تو یہ کبھی بھی نعت خوانی کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا. اچھا جب کوئی یہ سنتا تو کہتا ٹھیک ہے یار صحابہ کی نعت خوانی تو نعت خوانی تھی نا، آج کے دور میں جو آپ لوگ اشعار پڑھتے ہیں وہ جناب اشعار ٹھیک نہیں ہوتے. چلو بھائی صحابی کی نعت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ویسے تو حضرت حسان بن ثابت کے بہت سارے کلام کتابوں میں لکھے. ایک شعر پھر میں آ جاؤں گا قرآن کی طرف. میں بات شروع کر رہا ہوں کہ ہسٹری آف مدح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے وہ تو نبی پاک کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. اچھا حضرت حسان بن ثابت کے ایک شعر پر صرف بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اکبر، کمال کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے. اب ذرا غور سے ان 4 لائنوں کا معنی یاد کر لو، زندگی میں کبھی نعت خوانی پر کوئی کنفیوز نہیں کر سکے گا. وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ذرا رک جاؤ، یہ 2 لائنیں یاد رکھنا. اب اگر حضرت حسان کہیں کہ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آج 1400 سال بعد اب اردو بولنے والے اگر یہ نعت پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. اور آگے چلو، وہ آپ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر، یہ تو ایسا لگ رہا ہے حضرت حسان کی شاعری کی شرح ہو رہی ہے. اور سنو سنو، صحابی رسول نے جو اگلی لائن فرمائی ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مقادی، وہ آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے.
अब सुनो मेरे आला हजरत क्या कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। अरे हम तो नाते पढ़ते हैं, हमें तो हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला की वो शायरी याद है, बरेली के ताजदार तो कुरान और हदीस के अंदर वो कुरान और हदीस से इस्तेंबात करके उससे एक्सेस लेकर उसका एसेंस हमें अता फरमाते हैं, तो फिर हम क्यों ना नात पढ़ा करें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नात पढ़ना सहाबा का तरीका ये सदियों से चला आ रहा है। और अब आओ रब के कलाम की तरफ जब नजर करते हैं तो क्या खूबसूरत बात, पंजाबी शायर कहता है ना कि दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तुवे जेड़ा मर्जी सिपारा, पढ़ के तुवे जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। हाँ ये बात भी जो है ना जिसको कहते मुबालगा नहीं है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा। आज बस आपने तवज्जो रखनी है बयान में, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बात करेंगे कुरान की कि मेरे रब ने कुरान में कैसे अपने हबीब की शान बयान की है, कैसे नात बयान की है। पहली बात करते हैं उस मशहूर आयत की जो दुनिया भर के बच्चे बच्चे को कहा जा सकता है याद है, हर नमाज के बाद उस शाकान रसूल की मस्जिद में हर दुआ के बाद ये उमूमन आयत पढ़ी जाती है जिसको हम आयत दुरूद कहते हैं। क्या खूबसूरत आयत है, इरशाद होता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वैसे तो ये आयत सबको याद है, आज इस आयत के तहत चंद मदरी फूल सुन लो, आइंदा जब ये आयत सुनोगे ना तो मजीद शौक बढ़ जाएगा। इसका तर्जमा पहले सुन लेते हैं। तर्जमा यह है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, कुरान में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हुक्म हुआ है, मगर कोई ऐसा अमल बयान नहीं हुआ कि ए ईमान वालो अल्लाह भी वो अमल कर रहा है, फरिश्ते भी कर रहे हैं और तुम भी शामिल हो जाओ। देयर इज वन एंड ओनली दुरूद पाक वो अमल है जो रब फरमाता है अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते, ईमान वालो तुम भी शामिल हो जाओ। यकीनन इसकी कैटेगरी तत्बीक की उलमा ने। अल्लाह का दुरूद भेजना क्या है, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है, फरिश्ते और हम इंसान दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा, उन पर दुरूद भेज। मगर जरा सोचिए, अच्छा अब बात करते हैं, अल्लाह तो वहदहू ला शरीक एक है, मगर फरिश्ते कितने हैं जिनकी ये ड्यूटी है, ये हैं कितने जो इतनी बड़ी तादाद में दुरूद भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये बड़ी कमाल की तफसील है जो उलमा ने लिखी कि अल्लाह करीम के तमाम लश्करों से सबसे बड़ा जो लश्कर है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। सुनिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। अब जरा गौर से सुनते जाइएगा, आपने कई हदीसे बयानात में कई ऐसी फजीलतें भी हैं जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के फरिश्ते बयान हुए। अब उनके में से चंद के नाम लेता हूं तो आपको याद भी आता जाएगा। मलाइका मुकर्रबीन, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, सातों आसमानों पर रहने वाले अरबों से जायद फरिश्ते, जन्नत के पहरेदार फरिश्ते, दोज़ख के दारोगे फरिश्ते, अच्छा फिर पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते, बादलों पर मामूर फरिश्ते, हवाएं चलाने वाले फरिश्ते। जब नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरी फातिहा पढ़ते हैं तो आमीन, उसके आखिर में आमीन कहने वाले फरिश्ते, नबातात उगाने वाले फरिश्ते, पैदा होने वाले बच्चों की माँ के पेट में शक्ल बनाने वाले फरिश्ते हैं। अब जरा गौर कीजिए कितनी कैटेगरी है। नमाजियों की तिलावत पर आमीन कहने वाले फरिश्ते, रब्बना वलकल हम्द कहने वाले फरिश्ते, नमाज के लिए जो इंतजार में बैठते हैं उन मुंतज़िरीन के लिए दुआ करने वाले फरिश्ते। अच्छा, ये तो कुछ कैटेगरीज हो गई, क्वांटिटी अभी भी समझ नहीं आई कि है तादाद कितनी है। अब जरा सुनिएगा, अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों की तफसील के बारे में इमाम नबहानी सादतुद्दारैन में फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस उन्होंने कोट की कि आसमान चरचराया। चरचराने का मतलब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कोई स्टेज हो और उसमें बहुत सारे लोग चढ़ जाएं तो उसमें चरचराहट की आवाज आती है ना, तो आका फरमाते हैं आसमान चरचराया और उसको चरचराने का हक है। कदम भर भी कोई जगह उस पर ऐसी नहीं है जहां कोई फरिश्ता रुकू, सजदे या कयाम में मौजूद ना हो। अच्छा, अब भी समझ नहीं आया क्वांटिटी कितनी है।
हैं तो बहुत सारे, मगर क्वांटिटी कितनी है? अब उन्होंने बड़ी कमाल की अमेजिंग एक कैलकुलेशन दी है। अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप भी ज़रा, ये है तो वैसे मेरी बरादरी वालों का एरिया, तो हिसाब में पक्के होते हैं मेमन लोग ताजरान, तो ज़रा हिसाब चेक कर लेते हैं। वो फरमाते हैं, बताया जाता है कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9, अगर 10 का फिगर हो तो 9 जिन्नात होते हैं, 1 इंसान होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं दुनिया में इंसान कितने हैं। आजकल की कैलकुलेशन के मुताबिक बताया जाता है तकरीबन 8 अरब इंसान इस दुनिया में बसते हैं। तो एक मोटा हिसाब कर लेते हैं, वरना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाएंगे अपना हिसाब सीधा करने के लिए। तो जिन्नात कितने हो गए? 80 अरब। ठीक है, दुनिया में जिन्नात कितने हो गए? अगर 8 अरब इंसान है तो जिन्नात कितने हो गए? 80 अरब। आप फरमाते हैं इन दोनों को मिला लें तो ये खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। इसका मतलब जमीन पर जितने जानवर हैं ना, वो 80 अरब को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो 800 अरब जानवर हैं, जिसमें सारे जानवर आ जाएंगे। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये परिंदों का 10वां हिस्सा है। परिंदे कितने हैं दुनिया में? एक एक दरख्त में पता नहीं कितने 100,000 परिंदे बाजू का रह रहे होते हैं। ठीक है, दरख्त मत काटा करो, ये उन्हीं का घर है। हमारे तो कॉलोनियां होती है, दरख्त परिंदों का घर होता है। और परिंदे हो कितने गए? 8000 अरब। ठीक है, अच्छा फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये बहरी जानवरों का 10वां हिस्सा है। समुंदर में जो जानवर होते हैं ना, क्योंकि समुंदर 67% ऑफ द वर्ल्ड है, और फिर कई कई मील गहरे समुंदर भी हैं। अल्लाह ने इतनी मखलूक समुंदर में दी है। मैंने एक और तहकीक पढ़ी थी कि अगर दुनिया में खाना पीना सब खत्म हो जाए ना, तो ये समुंदर 100 साल तक दुनिया को चला सकता है। इतनी खुराक अल्लाह ने अंदर दी है। चलें, बहरहाल हिसाब याद है ना, कितने हो गए? 80,000 अरब। 8,000 था ना, 80,000 अरब समंदरी मखलूक है। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये जमीन पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। अब कैलकुलेटर भी जवाब देना शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर भी जवाब देना शुरू हो जाएगा। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये पहले आसमान पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इन सबको मिला लें तो ये दूसरे आसमान पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इसी तरतीब से 7वें आसमान के फरिश्तों की तादाद बनती है। और आगे अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इन सबको मिला लें तो ये अल्लाह अकबर कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में मामूली सी जमात बनते हैं। अल्लाह अकबर, कितने फरिश्ते हैं? अच्छा, एक ये कैलकुलेशन है, एक इश्क वाली कैलकुलेशन भी हमारे पास। हाँ चलो, इधर से नहीं पकड़ रहे ना, इधर से मुश्किल हो रहा है कैलकुलेट करना। एक और कैलकुलेशन है, वो इश्क वाली कैलकुलेशन क्या है कि आपको पता है नबी पाक के रोज़े पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं। अच्छा, जो एक बार हाजिरी देता है उसको दोबारा हाजिरी का मौका नहीं मिलता। इसकी वजह भी आला हज़रत ने बयान की है कि यार ओनली 12 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे मिलते हैं। सुबह आते शाम चले जाते हैं, शाम वाले सुबह चले जाते हैं, और दूसरी बार मौका नहीं मिलता। उसकी वजह आला हज़रत ने बड़ी कमाल की बयान की है, अशार में बयान की। आप फरमाते 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख 8 पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए। फरमाते अगर ये बाइफरकेशन, ये बार बार आना जाना ना हो और एक ही बार आने दें तो करोड़ों रह जाएंगे। ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, ये बारगाह मरहमते आम तर की है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।